Hello dear students, I welcome you all in first class of physics. Today we are going to start the syllabus of physics for class 11th. First of all, I would like to congratulate all of you for passing 10th board examination and choosing science stream. Those who are ambitious to become a doctor, they have chosen science biology, and those who are ambitious to become an engineer, they have chosen science mathematics. Dear students, I would like to tell you one thing, that if you want to become a doctor, for that you need to crack NEET examination, and if you want to become an engineer, for that you need to crack JEE examination. Dear students, I would like to tell you one thing, that if you want to crack competition examination successfully, for that you need to start making your preparation right from 11th class. You need to strengthen your concept, you need to build up your concept so that you can easily crack competition examination. So today we are going to start our 0th chapter. Before start you might be wondering that before starting first chapter, why are we starting 0th chapter? What does it mean? 0th chapter means the basic mathematical tools. Students, mathematics is known as language of physics, and if we want to understand the physics, we need to learn the language of physics, and language of physics is what? Mathematics. So in few books it has been named as basic mathematical concept, or in few books it has been named as mathematical tools. So this would be our 0th chapter, and after that we'll start our first chapter, that is physical world. We'll study about units and measurement, and then we'll go on with straight line, motion in straight line, motion in plane, and after that Newton's law of motion, work, power, energy, and so on. So dear students, one thing I would like to tell you that in 10th class के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेट मोशन का चैप्टर पढ़ा होगा, आपने ऑप्टिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उसके अंदर भी आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया होगा, या बेसिक एल्जेब्रा, जो बेसिक एल्जेब्रिक जो इक्वेशन है उसको यूज़ करके आपने फिजिक्स की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व किया होगा. तो therefore it is important to learn basic mathematical tools. If we want to solve numerical problems easily, for that we require mathematical tools. देखिए टूल से क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको अपन easily simplify solve कर सकते हैं. अब कुछ those who have chosen साइंस बायोलॉजी, उन्होंने लगा कि भाई हमने तो मैथमेटिक्स से पीछा छुड़ा के आए हैं और बायोलॉजी लिया है, तो हम ये मैथमेटिक्स की बात अभी से हो रही है, यानी मैथमेटिक्स. हाँ, अगर आप 90-95% के स्टूडेंट है, या आपका जो एम है वो नीट एग्जाम क्रैक करने का है, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छी से, जो आपके उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे होने चाहिए. और मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जब अच्छे होंगे तो आपकी फिजिक्स अच्छी होगी, और अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो नीट एग्जाम आप सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हैं. तो नीट के अंदर जो बच्चे अच्छी रैंक लाते हैं, जो अच्छे से क्रैक करते हैं, उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है. और फिजिक्स के लिए ये जो आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, लोग इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, उनका फाउंडेशन बड़ा वीक रह जाता है, और अगर अपना फाउंडेशन वीक है तो अपन उस पर बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं. तो इसलिए ये मैथमेटिकल टूल्स है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. एज फार एज बुक्स आर कंसर्न, इन लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द बुक्स विच वी आर गोइंग टू रेफर इन 11th क्लास. सारी की सारी जो बुक्स है वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रही है. कुछ स्टूडेंट है जो 90-95% के हैं, जिनका एम है कि भाई नीट और जेई को अपने को क्रैक करना है, उनके लिए कुछ जो कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है, एलएन या रेजोनेंस के जो स्टडी मटेरियल है, उनसे अपन प्रॉब्लम्स को पिकअप करेंगे, उसको अपन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को साथ साथ में, ताकि आपकी 11th के साथ साथ में अभी से अगर कंसेप्ट अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी होती रहेगी, तो 12th के साथ में अपन एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट होंगे वो एवरेज होंगे, उनको लगता है कि यार अपने को भी अपनी मैथमेटिक्स बहुत वीक है, 10th के अंदर भी हमने बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, आपको जो फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं, अपने को ग्रेजुएशन करना है, बीएससी करना है, तो उनको उस लेवल से जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा. तो ये जो टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी होगी, जो अप्रोच होगी, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी. कुछ स्टूडेंट जो बिलो एवरेज होंगे उनके लिए हम अलग से प्लानिंग करेंगे, उनके लिए अलग से स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेंगे कि किस प्रकार से जो कॉम्प्लिकेटेड जो एक प्रॉब्लम्स है उसको अपन किस प्रकार से सिंप्लीफाई करें, उसको किस प्रकार से इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें, ताकि चीजें अपने दिमाग में सेट हो जाए और हमेशा के लिए याद हो जाए चीजें, फिर आप कभी नहीं भूले. तो उनके लिए जो स्ट्रेटेजी होगी वो अलग होगी, ताकि अपन बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक करें, बोर्ड के अंदर अपने परसेंटेज बहुत अच्छे हो, ताकि किसी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू में अपने को कहीं अगर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए अपने को परसेंटेज बहुत अच्छे होने चाहिए. तो उसके लिए अपने को किस टाइप से प्लानिंग करके और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ना है, तो वो सारी की सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 0th चैप्टर, दैट इज बेसिक मैथमेटिकल टूल्स. मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल tools. This would be our 0th chapter, mathematical tools.
बुक्स के बारे में अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, that is mathematics is the language of physics. This is very important statement. Mathematics is the language of physics, is the language of physics. यानी फिजिक्स को समझना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स जो है वो आपको बेसिक कंसेप्ट उसके पता होने चाहिए, तभी किसी भी फिजिकल प्रिंसिपल को अगर अपने को डिस्क्राइब करना है उसको, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड अ फिजिकल प्रिंसिपल, इफ वी वांट टू डिस्क्राइब अ फिजिकल प्रिंसिपल, इफ वी वांट टू अप्लाई फिजिकल प्रिंसिपल, फॉर दैट वी नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. And now what are all different mathematical tools which we are going to use in this chapter? That is, basic tool is trigonometry. You might have studied the basic idea, you might have taken the basic idea of trigonometry, right? You have taken from 9th class, 10th class में trigonometry काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा होगा trigonometry के बारे में. Next जो mathematical tool, that is geometry. And after geometry we'll discuss about calculus. In calculus we have two part. First is differentiation. ये सब कुछ आप पहली बार सुन रहे हैं कि भाई ये मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये मैथमेटिकल टूल्स होते हैं और इनसे अपन फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल है उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. फिजिक्स के काफ़ी सारे डेरिवेशन करेंगे, उसमें अपने को डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा, उसमें इंटीग्रेशन को भी अपन यूज़ करेंगे. तो ये कैलकुलस के बारे में. और इसके बाद में अपना रहेगा वेक्टर एल्जेब्रा. So these are the important mathematical tools which we are going to study in our 0th chapter. So ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को. उसके जो बेसिक जो आपने 10th का पढ़ रखा है उसको मैं फटाक से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ. उसके बाद में अपन 11th क्लास के अंदर या 12th क्लास के अंदर जो अपने को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कितना कंसेप्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक चीज़ें हैं, कंसेप्ट है, उसको अपन पढ़ेंगे. इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे. देखिए जो कई सारी आपके रेफरेंस बुक्स है उसके अंदर से अपन प्रॉब्लम पिकअप करेंगे. ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा. देखिए SC वर्मा को भी अपन फॉलो करेंगे, NCERT को अपन तो फॉलो कर ही रहे हैं, उसको तो अपन रेफर करेंगे. उसके अलावा भी काफ़ी सारी जो बुक्स वगैरह है वो डिपेंड करेगा कि आपका लेवल क्या है, आप कितने अच्छे से एफर्ट्स अपने कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन जो है. और कुछ इंपॉर्टेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो आपका स्टडी मटेरियल है LN या आपका जो रेजोनेंस वगैरह से हैं, तो वहाँ से भी अपन प्रॉब्लम्स को पिकअप करेंगे, उनको अपन सॉल्व करेंगे ताकि अपना जो बेसिक फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा हो, अपने बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से हो जाए. तो लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके बारे में बेसिक आपने 11th क्लास 10th क्लास के अंदर भी स्टडी किया है. इफ वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल ABC, दिस इज माय right angle triangle. In right angle triangle we define 6 trigonometric ratios. Suppose this angle is my theta, this angle is phi, and what are the 6 different trigonometric ratios? Sin theta, cos theta, tan theta. Then reciprocal of sin theta is what? Cosec theta. Reciprocal of cos theta is sec theta, and reciprocal of tan theta is what? Cot theta. And you have also calculated the value of sin, cos, tan for different angle, like for 0 degree, then for 30 degree, then for 45 degree, then for 60 degree, and then for 90 degree. The value of sin 0 is, this is 0, value of sin 30 is 1 by 2, value of sin 45 is 1 upon root 2, the value of sin 60 is root 3 by 2, sin 90 is 1. कॉस की जो वैल्यू है वो आपकी 1, ये रूट 3 बाई 2, 1 अपॉन रूट 2, दिस इज 1 बाई 2, ये 0. साइन अपॉन कॉस करते हैं तो अपने को tan मिल जाता है. ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो सब कुछ आप पढ़ के आ रहे हैं, मैं केवल उसी चीज़ को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ. साइन अपॉन कॉस करेंगे तो आपको tan की ये वैल्यूज़ मिल जाएगी. अगर साइन को रिवर्स करेंगे तो कॉसेक के लिए वैल्यू मिल जाएगी, और कॉस को अगर अपन रिवर्स करेंगे तो सेक के लिए वैल्यू मिल जाएगी, और tan को रिवर्स करने पर कॉट के लिए वैल्यू मिल जाएगी. ये वैल्यू मैं सारी लिख नहीं रहा हूँ, ये आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और ये सारी वैल्यू
ऑन टिप्स होनी चाहिए। कोई पूछे भाई साइन 60 तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, ये फटाक से। कोई पूछे भाई tan 30 डिग्री तो 1/√3, फटाक से ये ऑन टिप्स होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कई बार अपन जो है ये टेबल किसी ने लर्न की होगी, किसी को वैल्यूज पता नहीं होगी, इस टाइप से नहीं है, ये सारी वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। इसके बाद में अपन ने वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, वो साइड का रेशियो होता है। साइन थीटा आपने सिंपल पढ़ा होगा, साइन थीटा वी डिफाइन एज साइड अपोजिट टू एंगल, दिस इज AC डिवाइडेड बाय largest side, and you know largest side in right angle triangle is known as hypotenuse, so this would be AC divided by BC. Similarly you can also define sin phi, and what is the value of sin phi? Side opposite to angle, this is AB divided by hypotenuse, this is BC. आपने सिंपली इस टाइप से किया होगा कि एंगल के सामने जो आपका परपेंडिकुलर होगा, इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर बेस, जो भी जिस कंसेप्ट से आपने पढ़ा होगा, इट्स ओके। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने 10th में पढ़ रखे हैं। 11th क्लास के अंदर आज अपन जो है उसको शुरू कर रहे हैं। 11th के अंदर थोड़ा सा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं, तो उसको आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारा बेसिक जो है, जैसे आपने एक सिंपल फॉर्मूला भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से आपने ये साइन थीटा कैलकुलेट किया होगा, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस से अपन कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं, साइन अपॉन कॉस आपका 10 होगा। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उस पर अपन ज्यादा अभी फोकस नहीं करेंगे। 11th क्लास के अंदर अपन किस टाइप से करने वाले हैं, तो ये 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री एंगल के लिए वैल्यूज अपने को पता है। अब मान लीजिए कि अपने से कोई पूछे कि भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वी आर नॉट एबल टू टेल what is the value of sin 120. If we need to calculate the value of tan 135 degree, tan 135, we don't have idea. If we want to calculate the value of cot 180 डिग्री, वी डोंट हैव आइडिया हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो ये हायर एंगल की जो वैल्यूज है इनको कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर को आज अपन डिस्कस करेंगे। और फिर ये जो साइन, टैन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी हायर एंगल के लिए वैल्यूज को अपन कैलकुलेट करने वाले हैं आज के लेक्चर में। इस प्रोसीजर को बहुत अच्छे से देखिए, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में 3-4 आपको रूल्स बताऊंगा, और वो 3-4 रूल्स आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा, उन रूल्स को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चीजें जब प्रैक्टिस में आ जाएगी तो फटाक से हो जाएगी। तो आज अपन हायर एंगल की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से, तो वैल्यूज ऑफ, आज का अपना टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर हायर एंगल। फॉर हायर एंगल, हायर एंगल के लिए किस प्रकार से वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ये आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। सपोज ये मेरे पास एक प्लेन है एंड आई ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन। आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, दिस इज माय वर्टिकल लाइन। इफ आई ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल line, they intersect at this point, and now this plane has been divided in 4 parts, first, second, third and fourth parts. It means each part of this plane is known as quadrant. तो एक अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को जब भी इस टाइप से ड्रॉ करते हैं तो ये मेरा जो प्लेन था ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, इट हैज बिकम डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। एक पार्ट होगा उसको बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो और जो आपका राइट साइड में टॉप पे है उस क्वाड्रेंट को अपन बोलेंगे फर्स्ट। कितने क्वाड्रेंट बन गए हैं, 1 2 3 4। अब इसमें बाय कन्वेंशन द क्वाड्रेंट विच इज ऑन द टॉप ऑफ राइट, टॉप ऑफ ये राइट साइड में टॉप, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड, टॉप ऑफ राइट, इट इज टेकन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड आफ्टर दैट वी मूव अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मार्क दिस एज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज एज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज एज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक अपना प्लेन था, प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो मेरे पास ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया एंड ईच पार्ट इज नॉन एज अ क्वाड्रेंट। और जो राइट साइड में टॉप पे है दैट इज नॉन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। दिस इज माय सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वुड बी फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, now this first quadrant it lies from, suppose this is my, you know, mark this as 0 degree and it becomes what, 90. It means first quadrant it lies between 0 degree to 90 degree and this is also 90, so it becomes what, 180. Second quadrant we can say lies between 90 degree to 180 degree. Now this is my third quadrant and 180 plus 90 it becomes 270. So third quadrant it lies between 180 degree to 270 degree and after that 270 plus 90 it becomes what,
360 degree means fourth quadrant, it lies between 270 and 360 degree. It means I have divided this plane in 4 quadrants. Now ये जो क्वाड्रेंट है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिफाइन होती है कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा मींस एंगल की वैल्यू 0 से अगर 90 के बीच में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो पॉजिटिव होंगे. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव. व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये हुआ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सपोज जैसे साइन 45 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या कॉट 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी. जो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट मींस एंगल लाइज बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री. सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे एंड रिमेनिंग जो होंगे, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे. इंपॉर्टेंट, जो साइन और कोसेक थीटा जो होंगे, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल कोसेक है वो तो दोनों पॉजिटिव होंगे. फॉर एग्जांपल इसको किस प्रकार से, सपोज साइन 120, तो 120 कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 टू 180 के बीच में आ रहा है. 120 मींस 120 यानी सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव होता है यानी साइन 120 की वैल्यू पॉजिटिव होगी. इफ आई से tan 120 विच क्वाड्रेंट, 120 मींस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका नेगेटिव. तो tan 120 की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी. थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan theta and its reciprocal cot theta are positive and remaining trigonometric ratios are negative. रिमेनिंग जो होंगे वो नेगेटिव होंगे. कोई आपसे पूछे भाई साइन 200, तो साइन 200 मुझे पता चला 200 मतलब आपका क्वाड्रेंट 200 यानी 180 से 270 के बीच में एंगल 200 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है. और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं. यानी साइन 200 की जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. ओके, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos theta and sec theta, these are positive and remaining are negative. ये सारी पहले प्री डिफाइंड वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया गया और उसके बाद में ये कंक्लूजन एक मिल गया अपने को कि क्या क्या पॉजिटिव होते हैं और क्या क्या नेगेटिव होते हैं. तो एक इंपॉर्टेंट जो आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, थर्ड में tan और cot, और फोर्थ में cos और उसका रेसिप्रोकल सेक. इसको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में ऐसे भी लर्न करते हैं. ए मींस ऑल, एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल हो गया, टी मतलब tan और उसका रेसिप्रोकल, और सी मतलब cos और उसका. तो ASTC से आप लर्न कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकंड साइन एंड कोसेक, इन थर्ड tan and cot, and in fourth cos and sec are positive, remaining negative. तो एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से. फिर अपन आगे अब बढ़ते हैं. अपना जो मेन एम है वो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर हायर एंगल. सपोज इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin 120 डिग्री, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan 300 डिग्री, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cosec 135 डिग्री, आई कैन कैलकुलेट ऑल दीज वैल्यूज. ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. सपोज कोई पूछे भाई आपको जो वैल्यू करनी है cot 720 डिग्री, ये बताइए. ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर है जिसके लिए 3-4 छोटे छोटे रूल्स है वो अपन पढ़ेंगे और फिर बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये आपने नोट कर लीजिएगा सबसे पहले. अब देखिए अपन ये जो वैल्यूज कैलकुलेट अपने को करनी है हायर एंगल की, उसके लिए क्या कंसेप्ट रहेगा, क्या आपके स्टेप्स रहेंगे. तो 4 स्टेप्स है, उसको अपन लिखते हैं. स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा. कोई भी अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए कि साइन 120 ही है या कोई भी वैल्यू है ये, तो सबसे पहले उसमें स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा. स्टेप फर्स्ट रहेगा राइट द गिवन एंगल इन द फॉर्म ऑफ n90 प्लस माइनस थीटा. स्टेप फर्स्ट, राइट द गिवन एंगल, write the given angle in the form of n into 90 plus minus theta. सपोज 120 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे साइन आपका 120 हो गया तो 120 को मैं लिख सकता हूं साइन n इंटू 90 यानी 1 इंटू 90 और प्लस 30, ये आपका साइन 120 हो जाएगा.
मान लो कि अगर आपके पास कोई दूसरी वैल्यू होती, जैसे मान लीजिए कि tan आपके पास अगर 135 होता तो इसको मैं लिखता tan 1 × 90 प्लस 45 डिग्री, इस टाइप से अपन लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आपको ध्यान में है। मान लीजिए कि आपके पास कुछ और वैल्यू होती cos 210 तो उसको लिखता है 2 × 90 प्लस 10। तो इस टाइप से ये गिवन एंगल को लिखना है, ये अपना फर्स्ट स्टेप रहेगा। सेकेंड स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एक बार आपने इस फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद में सेकेंड स्टेप के अंदर आपको साइन चेंज करना है। साइन चेंज करना है अकॉर्डिंग, साइन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन को चेंज करना है। तो स्टेप नंबर सेकेंड, चेंज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन अपने को चेंज करना है। ठीक, ये स्टेप नंबर थर्ड होगा, सेकंड हो जाएगा। एंड देन स्टेप नंबर थर्ड, चेंज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो if n is an odd multiple of 90 as follows। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू को अपने को चेंज करना है। अगर आपका यहां पे जो भी n है वो अगर ऑड मल्टीपल है, जैसे 1, 3, 5 ये वैल्यू है, तो किस टाइप से चेंज होगा, उसको इस टाइप से चेंज करना है। साइन थीटा will be changed in cos theta and cos theta will be changed in sin theta। सेकेंड, जो आपका tan थीटा है उसको आपको चेंज करेंगे cot थीटा में और cot थीटा को चेंज करेंगे tan थीटा में। फिर आपका होगा sec थीटा को अपन चेंज करेंगे cosec में और cosec को sec में। ये आपका थर्ड है। और if n is an even multiple then no change, तो कोई भी चेंज आपका नहीं होगा। और स्टेप नंबर फोर्थ, देखिए ये स्टेप है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई इतने बड़े स्टेप्स कुछ भी नहीं है, मैं आपको अभी बताऊंगा। केवल और केवल आपके आधा आपको जो है मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड लगेंगे और 30 सेकंड के अंदर अपन ये कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बस ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। स्टेप नंबर फोर्थ, राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज राइट एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज थीटा। फाइनली ये जो थीटा है उसको एंगल लिखना है। अब देखिए किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, ये सारे स्टेप्स आपके सामने हैं। साइन किस टाइप से चेंज होगा वो आपके सामने है। मैं आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूं कि किस प्रकार से अपन वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये अपने रूल्स अपने सामने लिखे हुए हैं। चलिए अपन यहां पे बात कर लेते हैं। चलिए यहां पे, ठीक, ये यहाँ पे मैं एक आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ और इन रूल्स को अपन अप्लाई करेंगे। बहुत ईजी है, ऑल पॉजिटिव। मान लीजिए कि मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन 120 डिग्री की। ओके, 120 डिग्री। स्टेप नंबर फर्स्ट, राइट द गिवन एंगल इन द फॉर्म ऑफ n90 प्लस माइनस थीटा। तो उसको मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू साइन, इसको मैं लिखता हूँ 1 × 90 प्लस 30, या आप जब भी आपको n90 प्लस माइनस थीटा फॉर्म में लगा इसको 90 से डिवाइड कर लीजिए। 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 90 हो गया, रिमाइंडर आपका 30 हो गया, तो 190 प्लस 30। ये स्टेप नंबर फर्स्ट फुल हो गया। चलिए सेकंड, चेंज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन को चेंज करना है। अगला स्टेप देखिए, क्वाड्रेंट कौन से में लाई कर रहा है ये एंगल, ये देखिए क्या है 190 प्लस 30। देखो यहां से शुरू होता है, ये 190 जीरो से लेके ये 190, ये एक और 90, यानी ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ये 290 हो जाएंगे। यहाँ तक अपन मूव करेंगे 390 हो जाएंगे, यहाँ तक मूव करेंगे 490। ये आपका 190 प्लस 30, 190 यहाँ तक पहुंच गई प्लस 30। कौन से क्वाड्रेंट में आप आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बताइए क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो ऑलरेडी अभी साइन इसका पॉजिटिव ही है तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी आप इसका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर ये मान लो कि इसकी जगह कॉस
होता तो यहाँ नेगेटिव हो जाता, तो ये पॉजिटिव रहेगा। चलो ये स्टेप आपका क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट चेंज। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, हमने कोई साइन, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है इसलिए साइन को चेंज नहीं किया। स्टेप थर्ड, चेंज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ n इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अगर ये जो n है, ये n 90 प्लस थीटा, ये n है, अगर ये ऑड मल्टीपल है तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका रेशियो उसकी वैल्यू को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? इस टाइप से चेंज करना है। साइन थीटा किस में चेंज होता है? कॉस में चेंज होगा, तो इसको मैं लिखूंगा ये कॉस, ये साइन किस में कन्वर्ट होगा और कॉस। और फाइनली जो वैल्यू लिखनी है, एंगल क्या लिखना है? पीछे जो थीटा है वही एंगल लिखना है भैया। ये पीछे जो थीटा है यानी एंगल क्या लिखेंगे अपन? ओनली ये 30, ये कॉस 30, और cos 30 की वैल्यू हमको पता होती है। द वैल्यू ऑफ cos 30 इज व्हाट? √3/2, तो ये वैल्यू आपकी आ गई √3/2। ये बहुत इजी है। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, एक सेकेंड एग्जांपल लेके, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 2-3 एग्जांपल लूँगा तो सारी आपके केस क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos, ओके, 210 डिग्री, cos 210। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या है? राइट द गिवन एंगल इन द फॉर्म ऑफ n 90 प्लस थीटा। इसको 90 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 90 और प्लस 30 रिमाइंडर रह जाएगा। 210 को 90 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स गया और ये 180 और पीछे में, तो इसको मैं लिखता हूँ 2 × 90 प्लस 30, तो इसको मैं लिख दिया cos 2 × 90 प्लस 30। ओके, स्टेप फर्स्ट हमने कर दिया। स्टेप सेकंड, चेंज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन को चेंज करना। क्वाड्रेंट कौन सा? देखिए ये किस क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है? 290 प्लस थीटा, ये यहां तक आ गया 190, ये आपका 290 प्लस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए जो आपका कॉस होता है वो क्या होता है? tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी कॉस क्या होता है आपका? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो साइन जो इसका आ जाएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? चेंज द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ n इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90। क्या n ऑड मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है ही नहीं, ये तो इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा तो cos को मैंने cos लिख दिया, और पीछे जो एंगल क्या लिखना है? राइट द एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज थीटा। ये पीछे वाला जो थीटा है उसको एंगल लिखना है, ये थीटा 30 लिख दिया, तो माइनस, ये माइनस, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये फाइनली cos 210 की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर दी, ये माइनस √3/2 आ गया। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं मैं कि किस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो आपको tan 300 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको आप उस फॉर्म में लिखिए, 90 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा tan 3 × 90 प्लस 30। सबसे पहले क्या करना है? चेंज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट चेक करिए, 390 प्लस आ रहा है, यहाँ तक 190, ये 290, ये 390 हो गया, और प्लस 30। कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है भैया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में क्या होता है? tan cos और sec की पॉजिटिव होती है, tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आगे नेगेटिव लगा दो। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना है। क्या ऑड मल्टीपल है 90 का? हाँ, ऑड मल्टीपल है, तो किस टाइप से चेंज करना है? साइन तो cos में चेंज होता है और tan किस में चेंज होता है? cot में। तो ये जो tan है ये cot में चेंज होगा, और पीछे जो एंगल जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? थीटा, यानी 30 = माइनस की जगह माइनस, और cot 30 की जो वैल्यू है वो क्या होती है? देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और इसका रिवर्स करेंगे तो √3, तो ये √3। तो यहाँ से ये फाइनल देखिए tan 300 की जो वैल्यू है वो माइनस √3 वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हायर एंगल की वैल्यू, ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये 4 स्टेप्स है, अगर 4 स्टेप्स को आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, आप इसको बहुत, मैंने एक सिंप्लीफाई जो इसका जो वे हो सकता है, इसके बाद में आप कोई भी अगर आपको डाउट है, मान लीजिए इस पर मैं कई सारे होमवर्क दूंगा, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपनी प्रॉब्लम जो है वो मुझे भेज सकते हैं, वहाँ से अपन डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन वगैरह, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी मैं यहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको, 9588286330, ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस व्हाट्सएप पे आप जो अपने प्रॉब्लम्स है उसको भेज दीजिए,
फिर जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन उसको इंक्लूड कर लेंगे या वीडियो के थ्रू आपको जो है वो वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये आज का अपना लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का, मैथमेटिकल टूल्स, और फर्स्ट चैप्टर को ये बेसिक अगर चीज़ें क्लियर होगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप समझ रहे होंगे भाई ये सारा का सारा मैथमेटिक्स चल रहा है, ये सारा का सारा फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में कई बार इसको ये सारी की सारी जो वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यूज में आएगी, और ये अभी आपको इतना टाइम लग रहा है, बाद में तो ऑन टिप्स फटाफट हो जाएगा। ये सारे इतना बड़ा स्टेप्स और ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फटाक से हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के थोड़ा टाइम लगता है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज एक जो आपका लाइक का बटन है उसको भी थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन और मैथमेटिकल जो टूल्स है उसको पढ़ेंगे और फिर आगे अपना जो फर्स्ट चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।